एआई और ऑटोमेशन की वजह से अब कैसे आगे, इससे क्या इम्पैक्ट होगा ये ट्रेड की गेम पे, क्योंकि वो भी तो एक फैक्टर बीच में मौजूद है जहां पे चीप लेबर की बात हो रही है, सो ऑटोमेशन एंड एआई एंड ऑल दैट। प्लीज डॉक्टर आयमा। जो ऑटोमेशन का द इंटायर प्रोसेस हैज टू बी इनिशिएटेड विद सम स्पेशलाइज्ड लेबर। तो इसकी तो हर चीज में एग्जांपल है, यू नो, आपके जो रोबोट्स है, एआई बॉट्स है, एवरीथिंग हैज टू बी ट्रेन थ्रू ह्यूमन चैनल। आपने यू हैव टू प्रोग्राम, यू हैव टू रन द कोड्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर टू मेक देम स्पेशलाइज्ड। एक पूरा प्रोसेस होता है, तो इट स्टार्ट्स विद सम स्पेशलाइज्ड लेबर। तो जिस कंट्री के पास ये टू एट अ स्टार्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, दे विल डू बेटर, अदर्स विल हैव टू टेक help from countries that are already doing better. For example, US has just asked, ये जो Taiwan की chips हैं उसके लिए भी US ने अपने पास जो facilities लगाई हैं, thousands of people from Taiwan have gone to the US to, you know, trade, train the whole process to, you know, advance in these things. So obviously it's not just the labor. AI advancement is a huge factor. But अगर आप US के बारे में बात करना चाहते हैं, US is a world class economy. They can train, they can have AI everything at the speed of light, if you say so. And you know, China is there already, but China is lower on innovation. US is great and grand on innovation. China is very great on replication, and you know how to streamline the process. But with US, you get the innovation stuff. So they're different playing fields. तो इसका इस जो कंट्री ज्यादा इनोवेट कर सकेगी, दे विल बी ऑन द फोरफ्रंट। तो जो कंट्री ज्यादा एआई में जाएगी, दे विल बी ऑन द फोरफ्रंट। द ओनली थिंग आई सी इज दैट द यूरोपियन मार्केट is going to lack a bit behind, because यहाँ पे the laws were so stringent that they haven't been able to keep at pace with the AI and, you know, robotics, etc. So the European market, I see it lagging behind, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है और लेबर फैसिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है। Whereas with India, the thing is, a lot of their people, I mean, look at the literacy rate, look at their vocational training rate, look at their AI rate. I don't consider India to be a part of the game, in all दैट्स द honesty. थिंग। तो ये सवाल आता है डॉक्टर उस्मान कि क्या ये ट्रेड वॉर टेक वॉर के अंदर तब्दील हो जाएगी और वाइस वर्सा? G. Dr. Saab, there is a technological element to the trade war. But the most important thing I think we all have to understand as a global society is that Trump is playing a dangerous game with his own people, because he is part of the billionaire class. He is a wealthy man who has built his career and family business on exploiting people, evicting people, and being hard on New Yorkers. Now he's done it in the American case for all of the United States in his last term. Now he wants to do it for the whole planet this term. He says to the American people, who he doesn't actually associate with, working Americans, you want jobs? All right, मैं अभी जाके China की माँ बहन कर दूंगा, which is not the way that you will get jobs, and they won't be useful jobs. That's not what Americans need now. What they need is a functioning welfare state, good health care, etc. But he doesn't get that, because his real interests are with a opposing class, the capitalist class. That is why he's promoting Doge. That is why he had this COVID response back in 2020, if you recall. He does things for this class and then tells lies to this class. Now he's doing that at a global scale. That is the main problem, and this will apply to the technological sphere, जो कि आपका सवाल था। मैं थोड़े से इख्तिलाफ इस डॉक्टर आयमा से इस बात पे करूं कि China is not just a mere replicator now. DeepSeek is, in AI terms, actually innovative, according to the AI experts. It's not my opinion. On electric vehicles, they're actually ahead in innovation. Same with solar panels, etc. They're actually moving the technological curve forward now. वो 80s का ज़माना अब खत्म हो गया. Now they are at the cutting edge. अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चौहान। मेरी बात जो है ना, जो मैंने करनी थी वो आपने कर दी। मुमकिन है मैं डॉक्टर आयमा को हमेशा वो कट करता हूं, तो आज ना करता, लेकिन आप आज मौका नहीं छोड़ा, अच्छा किया। वजह इसकी जो टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अर्ज करता हूँ। एक जमाना था कि आप कह रहे थे चाइना प्रोडक्ट। अच्छा, एक जिंदगी में एक दफा चाइना का विजिट जरूर करना है आपको। इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर आपको उसकी प्राइस से लेकर आपको, मैंने कहा कि 3000 RMB के अंदर आप एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, अच्छी जिंदगी। अच्छा, फ्रॉम फूड टू एवरीथिंग, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो फ्रेंचाइज बनाते हैं, चाहे वो बर्गर किंग की है, चाहे वो KFC की है, वो चाहे किसी भी चीज की है, ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लेते हैं। ये पाकिस्तान और बाकी दुनिया की तरीके से उनकी फ्रेंचाइज नहीं उठाते, ये 30-70 पे उठाते हैं, और ये अमेरिका इनके पास काम करता है। ये नेगोशिएशन आज उनके लिए पहली दफा नहीं है।
मैंने अपनी ही गली के अंदर वॉलमार्ट को 4 दफा बंद होते देखा, और 2017 नाउ ऑनवर्ड मैं इसको देखता रहा, मैं फिर कई साल नहीं आया, फिर जब मैंने आके देखा, मैंने कहा अब टोटल वॉलमार्ट कितनी दफा बंद हो चुके हैं? 21 दफा। वो बंद कर देते हैं और अगले ही दिन बंद कर देते हैं, दे डोंट इवन बॉदर। अच्छा, हमेशा गुलामी से निकलने का तरीका भी यही होता है। इसी तरीके से आप चैट जीपीटी 4 को देख लें और डीप सीक को देख लें, उसकी टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क ऐसे है कि डीप सीक बहुत कम में बना, बहुत कम प्राइस में बना, और वो आपकी पूरी गाड़ी को ड्राइव करेगा। करके देखा है बहुत आगे है। डीप सीक की टेक्नोलॉजी जो है उसने डीप सीक की टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल दिया। अब एक और बात मैं बता दूं कि अब रेप्लिकेटिंग नहीं कर रहा। चाइना ना चिप बना रहा है, इनोवेशन में आ चुका है। आप जाकर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च साइंस और रिसर्च गेट के ऊपर इनकी रिसर्चेस देख लें, इवन उसके अंदर मेरे भी जर्नल्स होंगे, आप जाके देखें ग्रीन इनोवेशन के अंदर सबसे ज्यादा काम। और अगर आपने कार्बन फुटप्रिंट को सबसे कम देखना है तो इतने हमंगस कंट्री के अंदर फुटप्रिंट को, कार्बन फुटप्रिंट को देखें, आपको ना होने के बराबर मिलेगा। दे हैव अचीव्ड दैट लेवल। और इनोवेशन, अगर अब आप ये कहते हैं अगर आप ट्रेड स्पॉनेज का इल्जाम अब अगर चाइना पे लगाते हैं तो गलत लगाते हैं। देयर इज नो ट्रेड स्पॉनेज। अब ये टेक्नोलॉजी में, इवन मेडिकल साइंस के अंदर, बाकी इनोवेशन में, एआई में, ये कटिंग एज से आगे चलेंगे। डीप सीक अभी एक शॉकर था, इसके आगे बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो सेल्फ ड्रिवन है। अच्छा, इसके अलावा एआई उससे अगली टेक्नोलॉजी पे जा चुका है। यानी आप भूल जाएंगे कि वो जो मामला था ये कशिश शकल वाला, उससे आगे निकल गया, सेंट्रीफ्यूगल से आगे निकल गया। अभी आपको लाइट क्रॉस करके दिखाएगा, और वो आइंस्टाइन के फॉर्मूले भी पीछे छोड़ दिए उन्होंने। सो आप इनोवेशन में चाइना को कम ना समझे, इनोवेट। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है, लास्ट बात कर रहा हूं, रिफॉर्म ऑफ चाइना के अंदर आप इनकी 5वीं बुक पढ़ेंगे या 4थी पढ़ेंगे, उसमें प्रेसिडेंट शी ने क्लियर कह दिया कि हमने हर चीज जो है वो विद द चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक बनाई, लेकिन अब हमारा जो है वो मंत्रा अगले जमाने का, यानी अब इस बात को कहे हुए 10 साल हो गए, इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। नाउ चाइना इज बियॉन्ड योर, आई मीन आपके दिमाग इनवर्ड लुकिंग हुआ, उसकी इकोनॉमी को उसने बेहतर किया। जीरो पॉवर्टी, क्या अगर आप जीरो पॉवर्टी को कुछ नहीं देना चाहते? ये कम्युनिज्म, ये देखिए, ये एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी आप यहाँ पे देखें, पॉवर्टी वेरिएशन कहां पर चली गई? यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग फैक्टर जा रहा है। सो इन्होंने गुर्बत खत्म की, आवाम खुश की, इनोवेशन के रास्ते पे। बिल्कुल गलत है कि वो किसी को रेप्लिकेट करते हैं या कॉपी करते हैं।